Hello, my dear student. I am Professor Gage Sachin Mohan from Sanjivani KPP Polytechnic Kopargaon. Welcome all of you in Sanjivani Lecture Management System. All of you know that the first semester is over now and we are in the second semester called as the even semester. My subject is Applied Science Chemistry, and today we are going to start the unit number 4, that is chapter number 4, Metal Alloys, Cement and Refractory Materials. It is a necessary to learn the some basic concept of chemistry for diploma engineers, so as to understand the basic concepts of metal alloys. So starting with the metal, I'm going to share a screen, the first PowerPoint presentation in front of all of you. Everybody know the metals. We learn the metal since from our school level. So it is not necessary to talk much about the metal. Everybody know that in a periodic table mostly the two-third content element belongs to the metals. We already studied the mechanical properties, physical and the chemical properties of the some metal in the first semesters. So we know that metals are the backbone of modern civilization. They occupy a supreme position for the progress of the country. Means the progress of the country is totally depending upon the production of metal, and metals are used in almost every article that we see around of us. Without the use of metal and the alloys, there would be a no cooking utensils, coins, telephones, motor cars, television, railway, aeroplane, space vehicles, and many more. It should be noted that pure metal have limited use, but we are going to convert the metal into the more useful alloy. Everybody know that Jamshedji Tata in 1839, that is the actual period of your J.N. Tata is 1839 to 1904, was a great Indian industrialist possessing a keen insight, and he founded the iron and the steel industry in our country and established the giant concern called as the Tata Iron and Steel Company Limited. He could forsake the role of the science will play in the progress of our country, and founded that the Indian Institute of Science, Bangalore, shortly called as IIT Bangalore, for the betterment of the science. Now, related to the metal, we are going to start with the occurrence of metal. Metals occurs in two states. The first state is called as the free state. Free state. Free state or native state. Free state or native state. So the first state of your metal occurs in, say, metal occurs in a free state or either native state. So which metal they are present or occur in a free state? Generally the metal like your gold, here gold, then your silver and platinum. These are the metals, they are actually inactive and they are found in the free state or in the elementary form in a nature. जैसे कि मान लो कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम, ये जो मेटल है ना वो इनएक्टिव मेटल होते हैं और वो ज़मीन के अंदर से, यानी कि वी विल गेट दिज मेटल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन के नीचे से हमें जो भी एलिमेंट मिलते हैं वो एक्चुअली फ्री स्टेट में होते हैं, एलिमेंट्री स्टेट में उसके फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं,
कि मान लो कि हमें गोल्ड मिला तो गोल्ड ही मिलता है, या फिर सिल्वर ही मिलता है, या फिर प्लैटिनम मिलता है, उसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं, या फिर फ्री स्टेट बोलते हैं, या फिर नेटिव स्टेट बोलते हैं, जो कि ऐसे मेटल है। दिस मेटल्स दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है। एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो भी एक्टिव मेटल होता है उनका पोजीशन होता है टॉप पे, और जो भी इनएक्टिव मेटल होता है ना उनका पोजीशन होता है बॉटम में। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। तो जो ऊपर वाले होते हैं ना उसको हम बोलते हैं एक्टिव, और जो नीचे वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव। तो ये नीचे पाए जाते हैं, यानी कि गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम वो बॉटम में एक्टिविटी सीरीज का, इसका मतलब वो इनएक्टिव है। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी एक्टिव मेटल है वो फ्री स्टेट में नहीं होता, यानी कि नेटिव स्टेट में नहीं होता, क्योंकि वो एक्टिव है। वो दूसरे जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी सब्सटेंसेस है अर्थ क्रस्ट में, तो उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए दूसरा जो ऑकरेंस ऑफ मेटल है ना, तो मेटल पाए जाते हैं एक तो फ्री स्टेट में और या फिर कंबाइन स्टेट में। ठीक है। सो कंबाइन स्टेट का मतलब होता है कि मेटल ऑकर्स इन अ नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, यानी कि मेटल्स हमें डायरेक्टली नहीं मिलते, उनके कंपाउंड मिलते हैं। तो कंपाउंड क्यों मिलते हैं, पहले ही मैंने बता दिया है कि ये जो मेटल होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, कि मान लो कि आपके अर्थ क्रस्ट में मॉइस्चर है, यानी कि वाटर है, ठीक है, और या फिर एयर है, ऑक्सीजन है, या फिर एयर है उसमें बहुत सारे गैसियस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे, या फिर अदर मेटल प्रेजेंट होते, तो उनके साथ ये मेटल रिएक्ट करता है और उससे बन जाता है कंपाउंड, और उसको हम बोलते हैं कंबाइन स्टेट। सो यहाँ पे आपको ध्यान में और या फिर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो भी मेटल हमें मिलते हैं वो दो स्टेट में मिलते हैं, एक तो फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट में इनएक्टिव मेटल मिलते हैं कि जो कि 3 हैं, और बाकी बचे सब एक्टिव मेटल है जो कि कंबाइन स्टेट में हमें मिलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे जाएंगे हम। आगे कुछ हमने यहाँ पे कुछ और मेटल्स एंड देयर ओर्स का एक चार्ट दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे मैं जूम करूँगा, थोड़ा सा जूम। ठीक है, तो जो पहला है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा मेटल है, तो यह आपका सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल है। दूसरा यहाँ पे देखिए उसका नेम दिया है और। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो ये हम यहाँ पे कंबाइन स्टेट के कुछ मेटल का स्टडी कर रहे हैं जो कि कंबाइन स्टेट में। तो सबको पता है कि सोडियम है, तो सोडियम हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl, जिसका फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, तो यानी कि हमें सोडियम अकेला नहीं मिला, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं मिला, वो किसके साथ है, वो क्लोरीन के साथ है। तो ये कंपाउंड हो गया, NaCl क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन स्टेट। तो उसका फॉर्मूला है NaCl। तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइप है, ये टाइप ऑफ ओर है, ये कौन सा टाइप ऑफ ओर है, तो उसको हम बोलेंगे हलाइड्स। हलाइड्स का मतलब हलाइड्स में क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, आयोडाइड होते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोराइड है, तो इसका मतलब ये क्लोराइड ओर है, ये आपको समझ में आना चाहिए, एक क्लोराइड ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो टाइप ऑफ ओर है, जहाँ पे इस टेबल के हिसाब से हम सोडियम मेटल का देख रहे हैं कौन से फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ है, उसका मतलब है कि ये क्लोराइड ओर है। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम, उसका जो ओर है उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं हम उसको, लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3, उसको हम सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बन। यानी कि कैल्शियम किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ है, यानी कि कैल्शियम जो भी एलिमेंट है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बन। यानी कि कैल्शियम हमें एलिमेंट्री फॉर्म या फ्री स्टेट में नहीं मिलता, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट है,
तो इसका मतलब वो कंबाइन स्टेट में है, उसके साथ दूसरा भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम जो CO3 ग्रुप है ना उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो इस टाइप ऑफ ओर को हम बोलेंगे कार्बोनेट ओर। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोनेट है। समझ में आ रहा है आपको? तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए तीसरा जो है तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो उसका जो ओर है उसको हम बोलते हैं मैग्नेसाइट, और मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है MgCO3। अगेन कार्बोनेट ओर। सो मैग्नीशियम मिलेगा, लेकिन किसके साथ मिलेगा? कार्बोनेट के साथ मिलेगा। सो यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ ओर है उसको हम बोलेंगे कार्बोनेट ओर। समझ में आ रहा है? कार्बोनेट ओर। ठीक है, आगे आगे वाला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो भी ओर होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं हम? बॉक्साइट बोलते हैं। तो ये बॉक्साइट है, उसका फॉर्मूला है Al2O3। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम किसके साथ है? एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, तो इस टाइप के ओर को हम बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड ओर। तो इसका जो टाइप हो गया ना ये ऑक्साइड ओर का टाइप हो गया। ठीक है, ये देखिए आप सिंपल है, क्लोरीन के साथ है तो क्लोराइड है। अगर CO3 है तो CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप, तो उसका ओर हो गया कार्बोनेट। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड ओर। ठीक है, आगे वाला देखिए यहाँ पे जिंक है, और जिंक का जो ओर है उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, उसका फॉर्मूला है ZnS। और इसका मतलब है कि जिंक किसके साथ है? सल्फर के साथ है, यानी कि कंबाइन स्टेट। अगर किसी के साथ है तो ये जो सभी एग्जाम्पल है वो कंबाइन स्टेट के हैं। तो यहाँ पे सल्फर है तो उसको हम बोलते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड, अगर सल्फर है तो उसको हम बोलते हैं सल्फाइड ओर। तो ये किस टाइप का ओर हो गया? ये सल्फर टाइप का ओर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आयन है, आयन के दो ओर है, बहुत सारे ओर होते हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट ओर है, उसको हम बोलते हैं हिमेटाइट। हिमेटाइट और मैग्नेटाइट, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है Fe2O3 Fe3O4। ठीक है, अगेन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ है? आयन के साथ है, यानी कि ये जो ओर है ये ऑक्साइड ओर है। ऑक्सीजन है तो अगर ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्साइड ओर ये होना चाहिए। ठीक है, आगे जाएंगे हम। यहाँ पे टीन है, टीन का ओर है कैसेटेराइट, उसका फॉर्मूला है SnO2। अगेन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन का मतलब ये ऑक्साइड ओर है। ठीक है, यहाँ पे लेड है, लेड का कौन सा ओर है? उसको हम बोलते हैं गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला होता है यहाँ पे PbS। गैलेना का मतलब होता है PbS, यानी कि लेड किसके साथ है? लेड है सल्फर के साथ, इसका मतलब ये सल्फाइड ओर है। क्या है? सल्फाइड ओर है। ठीक है, कॉपर है, कॉपर का ओर है कॉपर पायराइट। यहाँ पे कॉपर पायराइट है, दिखाई दे रहा है आप? कॉपर पायराइट या फिर उसको हम बोलते हैं चाल्को पायराइट, उसका फॉर्मूला है CuFeS2। तो यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कॉपर भी है, यहाँ पे आयन भी है और फिर सल्फर है। नो डाउट सल्फर है तो उसका मतलब है कि ये सल्फाइड ओर है, लेकिन ये आयन क्या कर रहा है? तो यहाँ पे आयन ये इस ओर में इम्प्यूरिटी है, यानी कि कॉपर के साथ दूसरा मेटल भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि कंबाइन स्टेट में है, कंपाउंड स्टेट में है या फिर कंबाइन स्टेट में है। ठीक है, और लास्ट में है आपका मर्क्यूरी, उसका मतलब होगा कि आपका ये सिनेबर है, सिनेबर। तो यहाँ पे देखिए आपका सिनेबर है, और यहाँ पे उसका फॉर्मूला है, सिनेबर का फॉर्मूला होता है Hgs, यानी कि मर्क्यूरी किसके साथ है? मर्क्यूरी है आपके सल्फर के साथ, इसका मतलब एक कौन सा ओर है? तो ये आपका सल्फाइड ओर है। ठीक है, सो दैट वन इज द very simple example. Now we are going to see the some of the basic terms. Okay, so the first one is your minerals. तो हम मिनरल किसको बोलते हैं? मिनरल्स का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज naturally occurring substance which are present in the earth crust which contain the metal either in a native state or either in a combined state. उसको, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिनरल। तो मिनरल्स क्या है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, तो वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ज़मीन के नीचे, उसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। और उस उनके अंदर क्या होता है? उन सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि उन सब्सटेंस के अंदर होता है आपका मेटल। मेटल, और हमने पढ़ा है कि मेटल दो स्टेट में
प्रेजेंट होता है, एक तो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है या फिर कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो हमने लास्ट में यहाँ पे जो भी स्टडी किया है ना, लास्ट में तो यहाँ पे हमने जो भी स्टडी किया है ना, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स है, ये सब मिनरल्स है जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स का डेफिनेशन सिंपल है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे और। तो और क्या होता है, यहाँ पे ये और है। सो और इज डिफाइंड एज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। तो हमें मिनरल मिल गए और उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मिनरल्स तो हमें मिलते हैं, लेकिन मिनरल से हमें किसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि उससे हमें फायदा हो। सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कॉल्ड एज द ओर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल है, मान लो कि यहाँ पे बॉक्साइट है, उसका फॉर्मूला है, बॉक्साइट का फॉर्मूला है जो कि हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। या फिर हीमेटाइट है Fe2O3, तो उसको हम बोलते हैं ओर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ओर होते हैं उसको हम मिनरल बोलते हैं, सभी ओर को हम मिनरल बोलते हैं, लेकिन सभी मिनरल को हम ओर नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का मिनरल लेंगे और उसका ओर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है, उसको हम बोलते हैं क्ले। ये तो मिनरल्स है विच इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। उसका फॉर्मूला होता है Al2O3 और उसमें होता है ट्वाइस SiO2। उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस H2O, यहाँ पे भी डॉट होगा। तो ये फॉर्मूला है क्ले का। तो यहाँ पे देखिए, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी भी है और उसमें एल्यूमिनियम मेटल भी प्रेजेंट है। तो हमें क्ले से क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। लेकिन ये नेचुरली है तो उसको हम बोलते हैं मिनरल, नो डाउट। लेकिन मैं क्ले को और नहीं बोल सकता, और क्ले मिनरल है, नो डाउट। सभी जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है उसको हम मिनरल ही बोलते हैं, लेकिन सभी मिनरल को हम और नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो क्ले है ना, उसमें से हम एल्यूमिनियम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी होते हैं। अगर हमें क्ले भी मिलता है तो उसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल, हमें उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो दैट्स वाई clay is not suitable for the extraction of your aluminum, so that's why clay is not a ore. ओके, दूसरा हम देखेंगे और के एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, दूसरा हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे Al2O3, उसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे, मान लो कि ये तो मिनरल है नेचुरली, और उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया से Al2O3 ट्वाइस H2O, ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका मिनरल है और उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया Al2O3, जिसको मैं बोलूँगा बॉक्साइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये मिनरल है, ठीक है, और ये मेरा ओर है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो ओर है ना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एल्यूमिनियम का ओर है ना, उससे हम ये जो बॉक्साइट है वो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें
ढेर सारा एल्यूमिनियम मिल जाता है। सो दैट्स वाई ऑल ओर्स आर मिनरल, यानी कि सब ओर्स मिनरल्स है, लेकिन सभी मिनरल्स आपके ओर नहीं हो सकते। ओके, लास्ट में हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे गैंग और उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो हम गैंग और मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स इज वन एंड द सेम। तो इसका मतलब होता है कि आपको मान लो कि आपको मिनरल मिल गया, यू विल एक्सट्रैक्ट दैट metal from that mineral, you will get the ore. But what happen, the metal content in mineral depends upon the extent of valueless unwanted materials which is called as the gang. तो इसका मतलब क्या होता है कि गैंग और मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द अर्दी अनवांटेड इम्प्यूरिटी, अर्दी अनवांटेड इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटी विच इज एसोसिएटेड विद द ओर। तो मान लो कि आपको जो भी मिनरल या फिर ओर मिल रहा है वो तो ज़मीन के नीचे से मिलता है, तो ज़मीन के नीचे क्या होगा? तो ज़मीन के नीचे अर्दी इम्प्यूरिटी होगा ना। तो कौन सा इम्प्यूरिटी होगा उसमें? मान लो कि सैंड है, क्ले है, रॉक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़, अर्दी अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़। और उस इम्प्यूरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग या फिर उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो कि हो गया सिलिकेट्स, सिलिका हो गया, ओके, उसको हम सैंड बोलते हैं, बालू बोलते हैं, ठीक है, रेती बोलते हैं हम उसको, ठीक है, क्ले हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपके रॉक्स हो गए, उसके ग्रैन्यूल्स हो गए, उसके पीस हो गए। तो इन सब को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर गैंग्स, जो कि आपके ओर के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल प्रोसेस बोलेंगे मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब होता है, मेटलर्जी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which are dealing with the study of extraction of pure metal economically and profitably। मेटलर्जी एक साइंस का ब्रांच होता है कि वो क्या करता है, जो भी हमें मिनरल या फिर और मिलते हैं उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, जहाँ पे ये बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो यहाँ पे देखिए मेटलर्जी में 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। मेटलर्जी, जो भी हमें मिनरल मिलता है उसका हमें कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद होता है उसका प्रोडक्शन ऑफ क्रूड मेटल। तो पहले हमें क्रूड मेटल मिलता है, डायरेक्टली प्योर मेटल नहीं मिलता। जो भी क्रूड मेटल मिलता है उसका हम करते हैं रिफाइनिंग, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। और चौथा होता है क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। तो लास्ट में लिखा है, शायद वो फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ द क्रूड मेटल, और लास्ट में होता है रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे मेटलर्जी का एक फ्लो चार्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो होता है हमें ओर मिल गया है, ठीक है, वो उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्रशिंग करना पड़ेगा, पल्वराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर, देन वी विल put that ore for the concentration, for example froth flotation, then electromagnetic separation, then electrostatic separation and leaching. This is called as the physical concentration. उसके बाद हम उसको concentrate करेंगे केमिकली, उसको हम कैल्सिनेशन एप्लीकेबल है, रोस्टिंग एप्लीकेबल है। उसके बाद आता है आपका रिडक्शन, रिडक्शन में हम करते हैं स्मेल्टिंग करते हैं। उसके बाद रिडक्शन विथ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड रिडक्शन विद द H2 वाटर गैस। हमें मिलता है क्रूड मेटल, और क्रूड मेटल का हम करते हैं रिफाइनिंग। किसके साथ रिफाइनिंग का मतलब, कौन से मेथड के साथ? So sorry for distraction. We are going to continue our lecture.
तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस है, उसमें से हमें ओर मिला, उसको हमने क्रश किया, यहाँ पे फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई किया, यहाँ पे केमिकल कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई किया, यहाँ पे स्मेल्टिंग किया, रिडक्शन किया, उसके बाद जो भी क्रूड मेटल मिलता है उसका हमने रिफाइनिंग किया, लिक्विएशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी करने के बाद हमें प्योर मेटल मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है जो भी मेटल है जो कि इम्प्योर फॉर्म में है उसको हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, तो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। सो फॉर टुडेज लेक्चर दिस वन इज क्वाइट इनफ. We will meet in the next lecture. Till then, goodbye.